हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के सेशन 4 में आप सबका स्वागत है। इन सेशन 3 वी हैव डिस्कस्ड इंट्रोडक्शन अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड हाउ टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक potential for any combination. Okay, so in this lecture we are going to start finding the electrostatic potential for various combination of the charge. So let us start from the point charge. Today in this discussion we will discuss electric potential of the point charge. Before discussing this, let me write one formula that what we have discussed in the previous session. That if I want a potential at a B, then its answer will be minus infinity to RB EDR. Or if I want VA, then what will be the formula? Minus infinity to RA EDR. Or if we want VA minus VB, okay, if you simplify it, then also you will get this result minus RB to RAEDR. And what is this? This is potential of A with respect to B in this formula especially. Okay, in this one. When we are finding VA in this, okay, what we have considered, B is at infinity. And when we are finding this one, at that time what we have considered, A is at infinity. Okay, is it clear to you? So if you want to calculate VA or VB, okay, yeah, means exact value, consider another point at infinite. What you will consider another point at a infinite. Clear to you? Okay, so easily you can calculate the exact value, but we have to remember one thing is that potential at infinity, potential at infinity is 0 volt. ओके, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज 0 वोल्ट। ठीक है, यहां पर हमने VA लिया है, तो इसका मतलब क्या है? दैट VA, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? दैट पोटेंशियल ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी। इंफिनिटी क्यों? क्योंकि ये B है वो कहां पर है? इंफिनिटी पे, इसीलिए। और इंफिनिटी पर पोटेंशियल कितना है? 0। तो यहां पर हम किसका पोटेंशियल निकाल सकते हैं? ए का। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? ओके, तो आइए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ point charge. Okay, first try to understand this, okay, and then after try to derive your own. Okay, पहले हम जब मैं डिराइव कर रहा हूं उस टाइम पर प्लीज आप क्या करेंगे? आप शांति से ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, दिस इज अ Q and this is a A, and distance between them is RA. Okay, we want to find out potential at A. Where we want to find out potential? At A. So VA is equals to, okay, now every time I will not write with respect to infinity, just consider it. Okay, VA is equals to minus infinity to RA EDR is equals to
minus infinity to RA. What is the electric field of the point charge? KQ upon R square. Okay, now let's do integration of this. If we do integration, what we get is equals to minus KQ outside, and 1 upon R square's integration is minus 1 upon R from infinity to RA. Okay, very carefully. Integration 1 upon R square dr is equals to minus 1 upon R. It's very simple, like what R square. So R raised to minus 2 when it goes in the numerator, and minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1. So easily you can get it. Okay, now minus minus get cancelled out. So what you will get? KQ. First put R equal to RA minus, then after put R equal to infinity. So what answer you will get? KQ upon RA. What is this? Potential of A. Okay. Very important formula regarding potential of the point charge. Okay, very important formula also. Very important result we got here. So note it carefully. Okay, I have derived it, and now I will say general that if any charge is there Q, okay, and you want potential of that charge Q at this point P, and if someone asks you what is Vp, simply Vp is equals to K into Q, मतलब कि जिस चार्ज का पोटेंशियल फाइंड करना है वो, ठीक है ना, अपॉन आर अपॉन डिस्टेंस। ये अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ये आपको बहुत यूज होने वाला है, ठीक है ना। Vp का मतलब क्या है? पोटेंशियल एट पॉइंट P। यहाँ पर Va का मतलब क्या था? पोटेंशियल एट पॉइंट। देखिए, अगर मैं Vb निकालना चाहूं, आई थिंक डायरेक्टली यू विल से सर इट इज KQ अपॉन RB। Therefore, अगर हम Va माइनस Vb करना चाहे, Va minus Vb, so what we will get? KQ upon RA minus KQ upon RB. So anything common here? KQ. 1 upon RA minus 1 upon RB. What is this? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। अब जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया है तो इन्फिनिटी की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो एक पॉइंट यहां पर मैं नोट करना चाहूंगा, ठीक है ना। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो फिर इंपॉर्टेंट क्या है? पीडी। पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज इंपॉर्टेंट। ओके, पोटेंशियल इंपॉर्टेंट नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ये Va माइनस Vb ये हमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मतलब कि इन दोनों के बीच डिफरेंस ये अगर हमें पता है, लेकिन ये तो हमें विथ रिस्पेक्ट टू किसके पता है? इन्फिनिटी। कहने का मतलब क्या है कि हम जो मालूम कर रहे हैं वो एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस ही है। हर बार जब भी हम पोटेंशियल ये फाइंड करते हैं तो ये पोटेंशियल डिफरेंस ही है। क्यों? क्योंकि ये पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू किसका है? इन्फिनिटी। इसीलिए पोटेंशियल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। अच्छी तरीके से समझिए, कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट होगा 1 वोल्ट तो नहीं लिखेंगे, वोल्ट। ऐसा यूनिट क्या होगा? वोल्ट, ठीक है। अगर ऐसा लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं। और जूल पर कूलम, बच्चों ये भी यूनिट है एक, जूल पर कूलम। कैसे? देखिए, वो हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। क्या पढ़ा था? that V is equals to W upon Q।
ठीक है, या तो हमने क्या पढ़ा था W इज इक्वल्स टू क्यू ई, तो इससे V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू आ गया, तो W क्या है, वर्क जूल पर कूलम। तो अगर हम 1 वोल्ट की डेफिनेशन लिखना चाहे, इसकी डेफिनेशन में बोल रहा हूँ बच्चों 1 वोल्ट की, अगर हम 1 वोल्ट की डेफिनेशन लिखना चाहे, डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट पोटेंशियल, ठीक है ना, तो क्या होगी, इफ 1 कूलम चार्ज is moved from, कहां से, infinity to given point and work done in movement is 0। वर्क डन अगर कितना है उस मोमेंट में, 0, सॉरी वर्क डन 0 नहीं है, अगर हम वर्क डन करेंगे ही नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, सॉरी वर्क डन is not a 0, work done is 1 joule, then potential of given point, potential of given point is said to be 1 वोल्ट। कैसे, देखिए V इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या फॉर्मूला है, W अपॉन Q, तो 1 जूल अपॉन 1 कूलम करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 जूल पर कूलम, या तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, वोल्ट। अगर हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाहे तो क्या आएगा, देखिए M1L2T-2 डिवाइडेड बाय कूलम, कूलम का क्या होता है, A1T1 होता है, तो क्या आएगा M1L2T-3A-1। ठीक है, ये तो हमने बात की किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट चार्ज। ठीक है ना, इसको आप अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बिठा लीजिए। क्या फॉर्मूला था पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, के क्यू अपॉन आर। ठीक है ना, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज क्या था, आपको पता होना चाहिए। पहले आप लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज कितना है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और पोटेंशियल कितना है, के क्यू अपॉन आर। तो अगर हम उसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहे, सॉरी किसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहे, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो अगर हम पोटेंशियल का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरह आएगा। ठीक है, और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसमें जल्दी ही डिक्रीज होगा। ठीक है ना, ये ग्राफ किसका है, पोटेंशियल का। ठीक है, और ये ग्राफ किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। देखिए R इज इक्वल टू अगर हमने 1 पुट किया, इफ R इज इक्वल्स टू 1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, के क्यू आएगी, और इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, के की, के क्यू आएगी। मतलब कि दोनों की वैल्यू सेम, कौन से पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर जहां पर R इज इक्वल्स टू 1। और ये दोनों ग्राफ ही कौन से हो गए, हाइपरबोला। कौन से ग्राफ होंगे, हाइपरबोला। और ये बहुत इंपॉर्टेंट
पॉइंट में यहाँ पे लिखना चाहूंगा, when we replace value of charge, we should replace it with sign। अच्छी तरीके से याद रखिए, with sign कहने का मतलब क्या है, जब हम इलेक्ट्रिक फोर्स या वो सब फाइंड कर रहे थे उस टाइम पर हम साइन को डायरेक्शन में हम यूज कर लेते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए अगर नेगेटिव चार्ज है तो हमें नेगेटिव साइन रखनी होगी और पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव रखनी होगी। ठीक है, ओके। तो ये तो हमने क्या डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट चार्ज। आइए कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं इसके। एक एग्जांपल में यहाँ पर कुछ ऐसा देना चाहूंगा, देखिए कि एक चार्ज है, कितना चार्ज है, 4 × 10⁻⁻⁷ कूलम। ओके, और हमें इससे कितने डिस्टेंस पर, 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक पी पॉइंट है, वहां पर हमें क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल। पहले आप ट्राई कीजिए पॉज करके, ठीक है। ओके, शायद ट्राई कर लिया होगा। सो Vp इज इक्वल्स टू KQ/R। So K is what, 9 × 10⁻⁹, Q is what, 4 × 10⁻⁷, and what is R, 9 centimeter। So 9 × 10⁻², यहाँ पर 9 कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर होगा 4 × 10⁴ वोल्ट। ठीक, ओके। तो समझ में आ गया आपको कि किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। V इज इक्वल टू क्या करना होगा, KQ/R। ओके, और एक अगर मैं एक ऐसी बात करूं कि अगर कोई चार्ज है 2 × 10⁻, अगर एक एग्जांपल में और लूं, ठीक है, जिसमें क्या दिया है कि अगर कोई चार्ज, हम जो इस पॉइंट पे हमने पोटेंशियल फाइंड किया है, ओके, इफ वी ब्रिंग charge 2 nanocoulomb at P from infinity, calculate work done। तो बहुत सिंपल है, वर्क डन इज इक्वल्स टू चार्ज जो हम लाए हैं, ठीक है ना, कितना चार्ज हम लाए हैं, 2 × 10⁻⁹, और यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, 4 × 10⁴। ठीक है ना, इसको मैं इरेज कर देता हूं, अब सॉल्व कीजिए, क्या आएगा, 8 × 10⁻⁵ जूल। ओके, और इस पॉइंट पर हम इंफिनिटी से चार्ज लाए, वो यहाँ से भी लाए, यहाँ से लाए, मतलब कि सर ये इंफिनिटी पॉइंट है तो इस रास्ते से लाए, किसी भी रास्ते से ऐसे घूम के लाए या पूरा सिटी घूम के लाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब क्या है कि वर्क डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करता, पाथ पे। ओके, कितना वर्क आएगा, 8 × 10⁻⁵ ही जूल, 5 जूल ही आएगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके, बिकॉज ऑफ मोर देन वन चार्ज, जिसका हम नाम देंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या नाम देंगे बच्चों हम, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। बहुत सिंपल है, सुपर पोजीशन प्रिंसिपल। हम बहुत टाइम से इसको डिस्कस करते आ रहे हैं 11 से। मैं आपको बोल दूं, सुपर पोजीशन का मतलब एडिशन ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, सुपर पोजीशन का मतलब मैं फिर से आपको बोल देता हूं, क्या है, एडिशन। तो मतलब कि किसका एडिशन, तो किसका सुपर पोजीशन प्रिंसिपल है बच्चों, पोटेंशियल का। तो
पोटेंशियल का एडिशन। तो कहने का मतलब क्या है, फॉर सिस्टम ऑफ मोर देन वन चार्ज, for system of more than one charge, potential at any point is sum of, कैसा सम, स्केलर सम, ठीक है ना, क्यों, बिकॉज पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर सम ऑफ पोटेंशियल because of individual charges। कहने का मतलब क्या है, देखिए बहुत सिंपल है। एक चार्ज Q1 में यहाँ पे रखो, ठीक है, दूसरा चार्ज Q2 यहाँ पे रखो, तीसरा चार्ज Q3 यहाँ पे रखो, और P पॉइंट पर मुझे क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल, ठीक है। अगर हम ऐसा सोचे कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, मतलब कि Q1 कितने डिस्टेंस पे है, देखिए फॉर एग्जांपल लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड P इज द R1, ये डिस्टेंस लेते हैं R2 और ये डिस्टेंस लेते हैं R3। therefore VP is equals to VQ1 plus VQ2 plus VQ3। अभी VQ1 कितना आएगा बच्चों, सिंपली KQ1 अपॉन R1, इसका कितना आएगा, तो KQ2 अपॉन R2 प्लस इसका कितना आएगा, KQ3 अपॉन R3। तो ये हो गया पोटेंशियल एट पॉइंट P। आपको सिंपली क्या देखना है कि भैया चार्जेस है तो सबका डिस्टेंस गिवन पॉइंट से कितना है, और सारे चार्जेस का इंडिविजुअल पोटेंशियल आपको फाइंड कर लेना है। देखिए एक एग्जांपल देखते हैं। मैं अगर आपको ऐसा बोलूं कि ये स्क्वायर है, क्या है ये, स्क्वायर, यहाँ पर Q चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर भी Q रखा हुआ है, यहाँ पर भी Q और यहाँ पर भी Q, और इसकी जो लेंथ है साइड वो A है, और ये भी कितनी है, A ही है। ओके, नाउ दिस इज O। व्हाट इज द पोटेंशियल एट O? देन इट इज वेरी सिंपल, ठीक है ना। सोचो कि ये कौन है, A, ये B, ये है C और ये है D। तो चारों का पोटेंशियल हम ऐड करेंगे, पोटेंशियल बिकॉज ऑफ A प्लस पोटेंशियल बिकॉज ऑफ B प्लस पोटेंशियल बिकॉज ऑफ C प्लस पोटेंशियल बिकॉज ऑफ D, और चारों का डिस्टेंस यहाँ से कैसा होगा, सेम ही होगा। मतलब क्या है, देखिए KQ अपॉन R प्लस KQ अपॉन R प्लस KQ अपॉन R प्लस KQ अपॉन R, तो कितना आ जाएगा, 4KQ अपॉन R। अभी ये A है तो यहाँ पर देखिए R इक्वल टू कितना होगा, R इज इक्वल्स टू √2A अपॉन 2, मतलब कि A अपॉन √2। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, VO इज इक्वल्स टू 4KQ अपॉन A अपॉन √2। तो √2 इधर ला देता हूं तो क्या आएगा आंसर, 4√2 KQ अपॉन A। और अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि देखिए यहाँ पर हमें O पर मिल गया, अगर O पर हमें कोई चार्ज लाना है, ठीक है ना, if we bring charge Q0 at O, calculate work done, calculate work done। so it's very simple, work done is equals to जो चार्ज हम लाने वाले हैं वो, और जहां पर लाने वाले हैं उस पॉइंट का पोटेंशियल। तो उस पॉइंट का पोटेंशियल हमें तो पता है कितना, 4√2 KQ अपॉन A। so what is the answer, it's very simple, 4√2 KQ Q0 अपॉन A, ठीक है ना। तो बहुत इजी है बच्चों, एक बार अगर आपको ये फॉर्मूला में पता चल गया KQ अपॉन R तो इजीली फाइंड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम पॉजिटिव का डिस्कस करेंगे, नेगेटिव का भी अगर डिस्कस करें तो भी ऐसा है। तो नेगेटिव का पोटेंशियल है वो नेगेटिव आएगा कुछ इस तरह। फॉर एग्जांपल देखिए कोई चार्ज है -4 कूलम चार्ज है, कितना है,
-4 कूलम और ये डिस्टेंस है वो है 3 मीटर। ठीक है ना, यहाँ पर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। व्हाट इज पोटेंशियल एट P? सो पोटेंशियल एट P इज वेरी सिंपल, KQ अपॉन R। K कितना है 9 इंटू 10⁹ Q कितना है सो -4 अपॉन R कितना है 3। तो क्या आएगा 3 3 जा 9 सो -12 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। और इस पॉइंट पर अगर हम इंफिनिटी से कोई चार्ज लेके आए, कौन सा, सोचो कि 10 कूलम लेके आए इस पॉइंट पे, तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। सो वर्क इज इक्वल्स टू अगेन द चार्ज दैट वी आर ब्रिंगिंग एंड पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो हम कितना चार्ज लेके आए बच्चों 10, और कहां पर P पर, तो P पर पोटेंशियल कितना है -12 इंटू 10⁻⁻9। तो कितना आएगा आंसर -120 इंटू 10⁻⁻9। ठीक है ना। सो व्हाट विल बी द आंसर -1.2 इंटू 10⁻⁻7 जूल। तो इस तरह हम पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव चार्ज है तो उसका पोटेंशियल नेगेटिव आएगा। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। क्या एग्जांपल में क्या दिया है कि दो चार्ज है। ठीक है, एक चार्ज है 3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम और दूसरा चार्ज है -2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम और दोनों के बीच में डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। कितना डिस्टेंस है बच्चों 15 सेंटीमीटर। अब हमें यह फाइंड करना है, फाइंड the point where potential is zero. Find the point where potential is zero. तो देखिए, सोचो कि हम यह कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं। ठीक है ना, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, सोचो कि ये डिस्टेंस कितना है x, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 15 - x होगा। वैसा ही करेंगे जैसा हम उस नल पॉइंट में करते थे। अभी ये पॉइंट P है, सोचो कि Vp इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो Vp इज इक्वल्स टू K इंटू 3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 15 - x प्लस ये -2 वाला है ना, सो K इंटू -2 इंटू 10⁻⁸। बच्चों मैंने डायरेक्टली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाया है। ठीक है ना, आपको समझ में आ जाना चाहिए। दोनों का पोटेंशियल निकाल के ऐड करो और सॉल्व करो, मौज करो। सो व्हाट विल बी द आंसर, सी 3K into 10⁻⁸ divided by 15 - x is equals to 2 into 10⁻⁸ K upon x। अगर हम यहाँ पर K 10⁻⁸ को कैंसिल कर दें और x इधर आ जाए तो 3x is equals to 30 - 2x, तो 5x is equals to क्या आएगा 30। therefore x is equals to क्या आएगा 30/5, कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। तो x हमने कहां से लिया था, कौन से चार्ज से लिया था, -2 से लिया था बच्चों। कहां से लिया था -2 से। तो इसका मतलब क्या है, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे therefore potential is 0 at 6 centimeter from -2 into 10⁻⁸ coulomb charge in between charge and on line joining them।
बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉइंट आएगा, यहाँ पर एक और पॉइंट भी आ सकता है। सोचो अगर हम इस साइड कंसीडर करें तो ये वाला जो पॉइंट है, सोचो हम कौन सी साइड कंसीडर कर रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। यहाँ पर अगर हम कंसीडर करें तो ये डिस्टेंस कम होगा और ये डिस्टेंस ज्यादा होगा। तो ये चार्ज तो ऑलरेडी बड़ा है और ये चार्ज इससे छोटा है। माइनस को मत कंसीडर कीजिए, 2 इसका मैग्नीट्यूड छोटा है ना इससे। तो क्या होगा, इससे पोटेंशियल बढ़ जाएगा और इससे पोटेंशियल कम हो जाएगा। एक तो इसका चार्ज भी छोटा है और उसके से डिस्टेंस भी ज्यादा है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर हम जीरो पोटेंशियल कहीं पर भी नहीं कर सकते, नो चांस। ठीक है, तो हमें कहा सोचना चाहिए, यहां पर सोचना चाहिए। ठीक है ना, सोचो कि ये डिस्टेंस कितना है x और ये डिस्टेंस कितना बन जाएगा 15 प्लस x। जब आप बाहर की बात करते हो तब आपको हमेशा क्या सोचना चाहिए, टूवर्ड्स लोअर मैग्नीट्यूड चार्ज, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड कम है तो हम उसको एक एडवांटेज देंगे। क्या एडवांटेज देंगे, हम उसको डिस्टेंस कम कर देंगे। ठीक है, तो सिंपली वही करेंगे जो करते आ रहे, के इंटू 3 × 10⁻⁸। अब 3 × 10⁻⁸ का डिस्टेंस इससे कितना हो जाएगा, Vp1 लिखेंगे। ठीक है ना, तो 15 प्लस x हो जाएगा। देखिए अच्छी तरीके से, ठीक है ना। सो व्हाट विल बी द आंसर, लेट मी राइट हियर 15 प्लस x। मैं डायरेक्टली इक्वेट कर देता हूं, आप समझ लीजिए। ठीक है ना, एक स्टेप मैंने इग्नोर किया, डिवाइडेड बाय x। अब क्या, अब जो पहले कर रहे थे वही, 2 × 10⁻⁸ को कैंसिल करो, ये 3x उधर जाएगा तो 3x, सॉरी 2 को नहीं कैंसिल करेंगे, k को कैंसिल करेंगे और इधर कितना आएगा 30 प्लस 2x। तो 30 प्लस 2x करेंगे, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। तो पोटेंशियल is 0 is 6 सेंटीमीटर and 30 सेंटीमीटर फ्रॉम 2 × 10⁻²। इन बिटवीन चार्ज, यहाँ पर बिटवीन नहीं आएगा, एंड आउटसाइड चार्जेस। ओके, एंड ऑन लाइन ज्वाइनिंग देम। एक पॉइंट और भी है, एट इंफिनिटी पोटेंशियल इज 0। ठीक है, तो आज का सेशन है वो यहाँ पर खत्म करते हैं और इस तरह ही पोटेंशियल फाइंड करने का जारी रखेंगे अगले सेशन में। ठीक है ना, थैंक यू एंड नमस्कार।